Good afternoon. Chairman. They're not even online. They're not even online. Yesterday हम लोग कौन सा टॉपिक देखे थे? बेसिक्स का सोलर पैनल का इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर व्हाट इज सोलर एनर्जी? What is the role of inverter? Inverter क्या है? Basically yes. What is the role of charge controller? Charge controller क्या काम करता है? नहीं करते। कंट्रोल डायरेक्ट बैटरी को और चार्ज डिस्टेंस से वो सेव करेगा। सोलर पैनल कौन से मेटल से बनते हैं? सिलिकॉन से। सोलर पैनल में कितना ईएच का वारंटी रहते हैं? और कौन सा conversion of sunlight into electricity is nothing but solar energy. First the principle of photoelectric effect. Solar panel, what is solar panel? Range of solar panel 1 watt से लेकर 750 watt तक अभी solar panel available है मार्केट में. Depending on the application, wattage will be decided. Solar panel come manufactured. Main component is the solar cell. Solar cell comes around 4 to 5 watt. There is the required wattage. So solar cell panel will be manufactured according to the requirement of the customer application. What are the energy produced from the solar panel? It is a DC electricity, DC energy, DC current. Generally, what are the total application we are using in the home application or industrial application? Runs on the AC only. For that reason, we are converting the DC energy into the AC by using the inverter. Inverter plays a crucial role in any application. And comes the charge controller. Generally, charge controller used to provide proper charging system to the battery. आज का कौन सा हमारा टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम्स? वो सर देखना हो गया और डिप्रिसिएशन कितना होगा 10% और 15% कितने साल जनरली सोलर पैनल का जो लाइफ है 25 years. As per the ordinary standard, it is 25 years. And at first 10 years it comes to up to degrade up to 10% of the power efficiency. डिप्रिसिएशन 10% 10 years Degradation बोलते हैं 10 years के लिए 10%. रुपये से होगा तो 20 next 15 years के लिए 20%. प्रोडक्टिविटी रहेगा आउटपुट आफ्टर 15 years. उसको फिर ये नहीं कर सकते क्या जब भी 15% डाउन हो गया उसको रीएनर्जाइज नहीं कर सकते नेचुरल आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम. जनरली solar classification based on the types of usage. Consist of the type of electricity grid we are using. That is majorly classified into two systems. The third is the hybrid system. On-grid systems is the first type. Second is off-grid mode. Third one is hybrid mode.
on-grid system is directly connected to the grid connected. Grid connection. Grid means nothing but the electricity. On-grid system is more efficient and no battery is required and lesser, lower cost. High efficiency, lower cost. High efficiency, lower cost. Advantages. Only disadvantage is limitation is that when the electricity on the system is not on. Current चले गए तो system काम नहीं करेगा. बैटरी नहीं Battery नहीं है इसमें. No battery. No battery. That's the reason it is lower cost. Suppose yesterday we discussed that 1 kilowatt system cost around 60 to 65,000 per kilowatt. An average. Suppose this battery included for a rating of 7.2 Ah per 1 kilowatt. System cost is almost double, 1,20,000 is required. It is major 50% of the cost is the battery. Plus one more disadvantage is that battery maintenance every 5 years battery needs maintenance. The usage is more. Less than 5 years only you have to replace the battery. Like EVA, whatever you say, they are given certain period of certain hours. After usage of 80,000 kilometers, battery would be replaced. Or mobile phone also, if you usage is more after 3 years or 4 years, then the battery life is very reduced. That's why on-grid systems is less cost. Because of the no battery is involved. Only disadvantage is that when the power cuts, it automatically does not work. because of no battery. No battery. इसमें से ये जो ऑनग्रिड वाला है इसमें नेट मीटरिंग करेंगे. Yes. Directly it will be what suppose घर में हम लोग on-grid system लगाता है जितने भी power जनरेट होगा that will be connected to the directly usage. अभी फैन चल रहे लाइट चल रहे सोलर पावर है जितना पावर भी उसके लिए कंजम्पशन चाहिए फर्स्ट द पावर विल बी टेकिंग फ्रॉम द इन्वर्टर. सपोज वी आर यूजिंग a power of 1000 watts. सोलर का लोड जनरेट कर रहे 2000 सिस्टम को 2 किलोवाट हम लोग लगाते हैं. जितना भी 2 किलोवाट पावर आ रहा है 1 किलोवाट इज कमिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बैलेंस 1 किलोवाट विल बी फेड टू द ग्रिड. वो बैलेंस 1 किलोवाट को जो रिक्वायरमेंट आएगा वो लोग यूज कर सकते हैं. तो उसका पैसा Suppose we are using a 3 kilowatt load, we are using system of 2 kilowatt system. 2 kilowatt taking from the solar and balance 1 kilowatt taking from the grid. That is the rule. It will be smart. This smart thing will be done by the on-grid inverter. That is taking care. But if the load that we are sensing based on the load, that will be by the load is less. Total solar is comes from the solar only. If load is more, but if the usage is more, required solar energy is taken from the solar panel, balance taken from the grid. ज़्यादा रहेगा तो उसको तो वापस जाएगा. वापस जाएगा. That is the store reading will be stored by the net meter. Net meter. हम लोग net meter इंस्टॉल करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं टोटल सोलर से कितना प्रोड्यूस किए थे ग्रिड से कितना हम लोग यूज किए थे. जो डिफरेंस इज दी टोटल हम लोग डिफरेंस और ज़्यादा अगर हम लोग वापस खरीदते हैं वापस भी नेट में आ जाएगा रीडिंग आ जाएगा. सोलर से मान लीजिए इतना रीडिंग है नेट से हम लोग किए थे सोलर से जनरेट हुआ 300 यूनिट हम लोग ग्रिड से लिए थे 200 यूनिट 100 यूनिट एक्स्ट्रा हम लोग पे करेंगे तो राइट एडजस्टमेंट के लिए करेंगे. सोलर से प्रोड्यूस किया था 100 यूनिट बाहर से लिए थे 200 माइनस 100 ओनली 100 यूनिट्स टू पे. दैट इज द कॉन्सेप्ट इन नेट मीटरिंग का गाइडेंस. इसमें भी नेट मीटरिंग नहीं है कि आप भी आफ्टर नेट मीटरिंग नहीं है. हाइब्रिड में हो सकता है बट उसमें सब चैलेंजेस है सब परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर परमिशन फॉर हाइब्रिड सिस्टम. बेनिफिशियल ऑनग्रिड Generally, these systems are used in the homes or offices or any corporations, industrial applications. अभी बड़ा इंडस्ट्रीज में पावर रिक्वायरमेंट जा रही है वो लोग ऑन-ग्रिड सिस्टम लगा के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है वो लोग उसमें जनरेट करते हैं. सेकंड इज द ऑफ-ग्रिड सिस्टम.
आपके सिस्टम में मेजर सेम सिस्टम ओनली ऐड ऑन इज बैटरी, इसमें बैटरी ऐड होता है। सोलर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी स्टोर्ड टू द बैटरी फर्स्ट, बैलेंस विल बी फेड टू द लोड। बैटरी फुल होने के बाद जितना भी एप्लीकेशंस है वो डायरेक्टली स्टोर करेगा। सोलर से एनर्जी कम होगा तो लोड के लिए चाहिए, बैटरी से थोड़ा लेके सोलर से भी थोड़ा ले सकते हैं। ये सिस्टम है। अगर बैटरी फुल हो गया उसके बाद कोई इक्विपमेंट भी नहीं चल रहा तो क्या तो वेस्टेज होगा। वो कैसे जाता है? कैसे जाता है मतलब जनरली इसमें डिजाइन में भी फिक्स होता है जितना हमको टोटल बैटरी कैपेसिटी है जनरेशन से कम होगा। सपोज बैटरी कैपेसिटी 7000 है, हम लोग 1000 का ही सोलर लगाते हैं। बैटरी में हर टाइम जाके स्टोर होकर रहेगा इस रिक्वायरमेंट में। जितना आप यूज करेंगे उतना यूज करते रहेंगे वो सोलर से कैसे रहेगा, इसलिए सोलर सिस्टम डिजाइन इज रिक्वायर्ड। तो डिजाइन का पार्ट हम लोग बाद में आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रिमोट प्लेसेस में उनका भी 4 लाइट 4 फैन चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, 8 घंटा ऑपरेशन है, उसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे कितना सोलर पैनल रखेंगे तो बेस्ट ऑप्टिमाइज होगा। उतना ही हम लोग कैपेसिटी बैटरी रखेंगे उतना ही सोलर पैनल देंगे, ताकि वेस्ट ज़्यादा वेस्टेज ना हो। अब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे देंगे तो डेफिनेटली वेस्टेज होगा, कम दे देंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, इतना घंटा चलेगा नहीं। सिस्टम डिजाइन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि ऑफ ग्रिड में और इलेक्ट्रिसिटी कट भी होता है तो चलता है, ऑन ग्रिड में नहीं होता है। हम देते हैं ऑन ग्रिड में जब लाइन कटता है इलेक्ट्रिसिटी कट होता है वो चलता है नहीं चलता है। हम देते हैं जो मेजर डिफॉल्ट है वो सिस्टम को हो रहा है लाइन क्यों कट करते हैं। जैसे आप लोग करते से बंद हो जाएगा, इसके बंद करते हैं। एक तो उसको पावर स्टार्ट पावर में कुछ इश्यू हो सकता है इसलिए बंद होते हैं, नहीं तो पावर का कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता है। एक दो चीज़ इंटेंसिटी बंद करते हैं, कुछ लाइन में वर्क करके बंद करें। पूरा लाइन में वर्किंग टाइम में इंटेंसिटी बंद कीजिए, आप सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी लाइन में जाएगा, वापस जाएगा। जो भी वर्क करेंगे उनका इफेक्ट होगा कि नहीं। तो हमारा तो कुछ फायदा नहीं है ना, हमारा तो हमारा जो गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेफ्टी। ठीक है, कस्टमर को कैसे समझाएं? कस्टमर को कैसे समझाएं? इट ऑलरेडी प्रूव है तो उसके लिए केस नहीं है, मेजर इशू है जिसका हम अलग करना चाहिए। आपको 5 किलोवाट आप जनरेट कर रहे हैं, आपको लाइन में यूसेज नहीं है, आप डायरेक्टली कनेक्ट को कनेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट को बंद कर लिया, बंद करने के बाद भी आपको परमिशन दे दिए सिस्टम पावर जनरेट करने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको यूसेज के लिए। हम ऐसे तो सिस्टम नहीं लगा सकते, ऐसे ग्रिड को नहीं जाएगा लेकिन हमको आएगा, तो ऐसा क्यों डिजाइन कुछ नहीं करना। तो हाइब्रिड सिस्टम है ना, हम पावर सिस्टम उसको पिक्चर में आ जाएगा। हम लोग बैटरी सपोर्ट लेके वो हम लोग चला सकते हैं हाइब्रिड मॉडल है। और जो ऑपरेट में सब्सिडी क्यों नहीं मिलता है? आपको तो पहले सब्सिडी था, अभी गवर्नमेंट नेट प्रमोट कर रहे हैं, उसमें क्या है मेजर चैलेंज है सारे सिस्टम फास्ट हो जाता है, वो तो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर वो इश्यू सिस्टम लगाने के बाद वो सब्सिडी नहीं तो वो पार्ट्स को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज करने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो रीजन क्या है? ऑन ग्रिड में तो दे रहे हैं, आपको पहले देता था, रिसेंटली बंद की थी गवर्नमेंट को कॉल से दोनों सब लोग सिस्टम का कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं सिस्टम देने को, उतना कास्ट में वो बेनिफिट दे देते तो बाद में वो मिसयूज हो। आपको मेन एडवांटेज कॉस्ट इज लिटिल हाई ड्यू टू द बैटरी मेंटेनेंस का। इट इज बेस्ट फॉर रिमोट विलेजेस जहाँ पावर नहीं है, जैसे आपको फार्म हाउस है तो कोई पहाड़ में विलेज है, उधर इलेक्ट्रिसिटी लाइन देने के लिए दिक्कत होगा। सोलर बैकएंड में तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगा, गाड़ी फैन लाइट यही चलेगा। उस एरिया में आपको 500 वाट और 1 किलोवाट सिस्टम लगाएंगे तो बहुत काफ़ी है। अभी भी बहुत सारे एरिया में भी चल रही है, बहुत सोलर में चल रही है। ऑपरेट लगा के वो रूम में बैटरी लगती है। तो ऑपरेट में बैटरी कैसे चूज करेंगे? लिथियम आयन या लीड आयन कैसे चूज करते हैं? जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में कोरोना गोल्डन डेज में ये लेड एसिड बैटरी ज़्यादा यूज होता था। स्पेशल केसेस में जैसे सेफ्टी ज़्यादा है, कम प्लेस है, इक्विपमेंट के लिए रियर वाले बैटरी यूज होता है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लिथियम बैटरी, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम बैटरी, मेंटेनेंस भी कम है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, उसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी ज़्यादा है।
उसको केसेस में जो कॉस्ट इफेक्टिव और कस्टमर रिक्वायरमेंट पर सकते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। जो आदमी कॉस्ट इफेक्ट कर सकते हैं उनका जो कम प्लेस में चाहिए लिथियम बैटरी इज वेरी सूटेबल। जैसे उनको प्लेस के लिए और कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ इशू नहीं है। लेड एसिड बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें क्या है एवरी 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स अंदर एक बार कुछ डिस्टिल वाटर ऐड करना है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, रिलायबल है। कुछ जगह में रियर वाले बैटरी है उसमें लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल मेंटेनेंस जरूर नहीं है, 5 साल तक चल सकता है। सील बैटरी आपको जो है पूरा केस में आता है, मेटल केस में अंदर फिट क्या है वो रियर वाले बैटरी जो स्टोर और अलग एप्लीकेशंस के लिए कोई यूज किया है। डिपेंड ऑन केस टू केस एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट वी सजेस्ट लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलॉजी लिथियम बैटरी। इन्वर्टर इनबिल्ट का भी लिथियम बैटरी के साथ आ रहा है टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपके सिस्टम में भी तो जो इन्वर्टर आएगा, इन्वर्टर में चार्ज कंट्रोल प्लस इन्वर्टर इनपुट हो जाएगा, तो उसको जनरली काम टर्मिनोलॉजी में पावर कंडीशनिंग यूनिट कहते हैं। पावर कंडीशनिंग यूनिट चार्ज कंट्रोल प्लस इन्वर्टर दोनों का काम करते हैं, उसमें सारा फैसिलिटीज करते हैं, इससे क्या चार्ज करते हैं। ऑफिस सिस्टम में जो चार्जिंग के लिए एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, सोलर तो हिंदी बिल नहीं है, ग्रिड से भी वो चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। यानी आपको पेट्रोल पंप में ऑब्जर्व किया होगा, वो ऑफिस सिस्टम रहता है, ग्रिड से भी चार्ज होते हैं, सोलर से भी चार्ज होते हैं। जब खत्म होगा वो करंट चले जाएगा तो वो चलता रहेगा, बैटरी के सपोर्ट से चलता है। और थर्ड सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में ग्रिड कनेक्शन होगा प्लस बैटरी में भी चलेगा, सोलर प्लस बैटरी प्लस ग्रिड टाइड इन्वर्टर। उसमें मेन एडवांटेज है कि पावर बैकअप है। जैसे आपको ग्रिड सिस्टम में करंट चले गए तो हम लोग उसको सिस्टम को रन नहीं कर सकते, पूरा बंद है। इसको हाइब्रिड सिस्टम में क्या है, हम लोग बैटरी ऐड करके जैसे सोलर से कुछ एनर्जी बैटरी सेव करके रखेंगे, जब लाइट चली गई है जैसे रेगुलर इन्वर्टर यूज होता है ऐसे हम लोग घर में एप्लीकेशन के लिए सारा एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो इसका प्राइस पॉइंट बता, किलोवाट के हिसाब से 1 किलोवाट का 1 किलोवाट का ग्रिड का प्राइस पॉइंट है अराउंड 65,000 और 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड का प्राइस होगा। उसमें बैटरी कैपेसिटी में डिपेंड होता है। एज ए कम रूल आप ले लीजिए 1 लाख, हाइब्रिड का ऑलमोस्ट 1,20,000 होगा। इसके इन्वर्टर में कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं हाइब्रिड में, बैटरी तो सेम रहता है, ऑपरेट सेम जैसा है, ज़्यादा फर्क नहीं। उसमें बैटरी थोड़ा हाई चाहिए, तो उसको 2 दिन का भी बैटरी सपोर्ट चाहिए। 1 लाख का जगह तो 1,20,000 होगा। जैसे बैटरी ग्रिड सपोर्ट होगा तो ग्रिड बिल्कुल नहीं है, उसको देखते हैं 1,20,000 होगा। जितना आपको बैटरी का बैकअप चाहिए उसी हिसाब से वो कॉस्ट पड़ेगा। लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे फिर डिस्काउंट वाले सभी जगह सोलर हो जाएंगे तो और उनका कैसे जनरेटर को पावर बोलूं इसका मतलब भी पावर कहां से तो परचेज कर रहे हैं, खुद गवर्नमेंट को खुद तो प्लान है। बाकी जो भी प्लान है भाई अदानी लगा के उसको भेज रहे हैं, कोल प्लान अदानी का कोल प्लान से बहुत सारा थर्मल प्लान है, उधर से आपको डिस्काउंट एनर्जी भेजेंगे उनसे हम लोग दे देंगे। उनका रिक्वायरमेंट के कम है, सोलर खुद का लोग जनरेशन कर रहे हैं तो वो कुछ खरीदना ही नहीं है। तो इतने स्टाफ में हम लोग कैसे एनर्जी डिमांड तो बढ़ता रहेगा ना। उस पार्टी को कल पर 10-15-20% सोलर हो रहा है, उसको भी जो जैसे पार्टी सोलर लोग डिस्काउंट खरीद करके जो आफ्टर जो पार्ट है टोटल नंबर ऑफ एनर्जी डिमांड में ओनली इंडिविजुअल रेजिडेंशियल पार्टी ओनली लेस देन 4% ओनली। बैलेंस जो भी सोलर में पावर जनरेटर है वो मेगा बड़ा प्लेस सोलर प्रोड्यूस करके गाँव में डिस्काउंट को भी बेचते हैं। वो लोग डिस्काउंट पे करते हैं पर यूनिट 3 रुपीस 30 पैसा 3 रुपीस 4 रुपीस तक पे करते हैं। जैसे इंडिया मेरा इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट से बच्चे पावर गवर्नमेंट से मिल रहे 6 रुपीस में, इंडस्ट्री की मिनिमम 5 से 7 रुपीस का अंदर मिल रहा है। सोलर से मैं 3 रुपीस में खुद जनरेट करो, मेरे पास पैसे हो तो मेरा इंडस्ट्री है, मैं खुद सोलर प्लांट लगा करता हूँ। मैं तो क्या खुद करना है, कोई भी थर्ड पार्टी ईपीसी प्राइस बोलेंगे आप जाके मेरे पास पावर इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको गवर्नमेंट का 6 रुपीस में करूँ उतना एनर्जी आपको 3 रुपीस 50 पैसे में खरीदूंगा। इसी बिजनेस कर रहा है बहुत सारे लोग।
अदानी अदानी वगैरह वगैरह यही करते हैं, टाटा के यही करते हैं। गवर्नमेंट से 25 पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को बेचते ही 3 रुपीस में 280, 3 रुपीस 330 में, गवर्नमेंट हमको बेचते ही 4 रुपीस 455 रुपीस में, उसको प्रॉफिट होता है। इतना वॉल्यूम में बिजनेस करता है, इसका हमको प्रॉफिट होगा। सोलर लेके सोलर लेके सोलर लेके वही इलेक्ट्रिसिटी जहाँ अलग सोर्स से वो खरीदते हैं, सोलर से भी कनेक्ट करके देते हैं, वही पावर परचेज एग्रीमेंट। जो भी थर्मल प्लांट और हाइड्रो प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी, जो डीसी प्लांट पता है कहाँ पे सोलर कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है सोलर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का अदानी का गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब जगह पे। अभी रिसेंटली लास्ट ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद गुजरात में ज़्यादा कुछ प्रमोट की थी, उधर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, उधर तो ज़्यादा उधर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ज़्यादा इंस्टीट्यूट को प्रमोशन ज़्यादा किए थे और कुछ सब्सिडी वगैरह भी ज़्यादा ये होने के बाद महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा सोलर का भी यूसेज ज़्यादा है। राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र में क्योंकि वो जियोग्राफिकल वाइज भी उधर इलेक्ट्रिसिटी का स्कोप ज़्यादा है, उसको सारे इंडस्ट्री ज़्यादा एरिया में ज़्यादा है, तो सोलर ज़्यादा लगा सकते हैं। कोल्ड एरिया में अगर तो उतना एफिशिएंसी कम हो उतना जनरेशन कम हो, हर एरिया में एरिया की वजह से उनको कुछ किलोवाट पर डे अगर लगाएंगे गुजरात में 5 hours 5.5 hours का जनरेशन होता है। सेम आपको केरला में आ जाएगा तो 5.5 की जगह पे 4.8 होगा। हम एक जगह 1 डे में 4.8 hours का 4 किलोवाट में 4.8 यूनिट्स का जनरेट होगा। गुजरात में थोड़ा ज़्यादा होगा, राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा होगा। उस स्टेट में ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। हम उस स्टेट में सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी जो भी देते हैं वो अपने ऑफ ग्रिड में भी सब्सिडी देते हैं और ऑन ग्रिड में इसमें ऑफ ग्रिड में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में तो पंपिंग सिस्टम में नहीं इंडिविजुअल रूफटॉप में ही सब्सिडी है, तो मेगावाट बड़ा स्कीम होता है उसको तो सब्सिडी है। गुजरात में कभी पावर का नहीं होता गुजरात में कभी पावर का नहीं वो आगे रिच स्टेट है वो एक मिनट के लिए पावर इंडस्ट्री जो है ना वो इतना रेवेन्यू होता है उसको पावर ग्रिड में बहुत लॉस होता है। फिर भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जनरेटर वगैरह बैकअप रहता है पर जनरली नहीं होता है। तो सिस्टम इतना स्ट्रांग बना दिया जो ट्रांसमिशन लाइन से होती है पहले से धीरे धीरे पहले बहुत हमारा 10 साल पहले देखे तो हमारा नई टिकट का बचपन में तो 2 घंटे 3 घंटे पावर कट कर ही रहते पीक सीजन में। अभी तो बहुत कम हो रहा है, सिटी में कम होते जा रहे हैं इतना पावर कट है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पावर कट होता है। आप एक में निकाले तो मेंटेनेंस पावर कट है, इंटेंसिटी कभी अनाउंस करके 2-3 घंटा पावर कट होने के चांस में बहुत सारे एरिया कम हो गया। सोलर सपोर्ट करता है सोलर कर रहे हैं उनको अलग अलग पावर सोर्स पड़े, उसको बिजनेस है ना, प्राइवेट प्लेस भी आपको पावर जनरेट करके डिपार्टमेंट को भेजते हैं। नॉट दिस क्वेश्चंस मुझे कस्टमर 3 किलोवाट वगैरह आता है, उसको हाइब्रिड सिस्टम करना चाहते हैं, तो जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर तो चेंज हो जाएगा, हाइब्रिड इन्वर्टर हो जाएगा। जो जनरेशन मीटर है और एक नाइट मीटर वो चेंज हो गए हो रहेगा, बट उसके लिए जो सेपरेट एक परमिशन चाहिए, तो हाइब्रिड लगेंगे तो जनरेशन गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर मेन के लिए वो लोग परमिशन देते हैं। जैसे उसमें स्पेशल फीचर करते हैं, पावर कट के टाइम में वो जनरेशन ग्रिड के लिए नहीं जाएगी, उसके लिए सेपरेट कुछ मैकेनिज्म रहता है, आइसोलेशन मैकेनिज्म रहता है। इन्वर्टर में वो फीचर होगा तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो फीचर तो अप्रूवल नहीं है। आईलैंडिंग सिस्टम में कुछ टेक्नोलॉजी हो रहा है, वो प्रोवाइड में वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे परमिशन देने के इशू होगा तो आपको केस होगा। इसका हमसे परमिशन लेके वो हाइब्रिड सिस्टम को अप्लाई करेंगे। नहीं तो सेम ऐसे तो इन्वर्टर लगा सकते हैं ना, आपको गवर्नमेंट जैसे इन्वर्टर है ग्रिड भी लगा दीजिए, कारण चलेगा तो आपको रेगुलर इन्वर्टर से चलता रहेगा, वो सबसे बेटर है। सर ये 4 व्हीलर में भी दे देना चाहिए। पूरा बिल के अभी टेक्निकल कैलकुलेटर है, टेक्निकल रूम कार का रूम नहीं हो जाएगा ये और मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट 3-4 साल में सोलर का जितना भी उनको तार पॉपुलर पे उसको फ्लेक्सिबल सोलर पैनल होगा, उससे जो भी एनर्जी जो सोलर टैक्स भी आता है और इन्वर्टर में लगाते हैं सोलर टैक्स। अभी क्या है वो जो टेक्नोलॉजी रिसर्च चल रहा है उसमें कास्ट अभी सब रिसर्च स्टेज में उस पर कास्ट में जा रहे हैं। आप 10 साल पहले नहीं तो 1 किलोवाट का कास्ट लेंगे 2 लाख रुपये, अभी जाके 60-70,000 हो गया, बैटरी सिस्टम इतना हो गया, आधा वक्त से कम हो गया। तो फ्यूचर और भी कम हो सकते हैं, मास प्रोडक्शन हो गया, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो और भी कास्ट कम हो सकते हैं।
मुकेश अंबानी आएगा और थोड़ेगा प्राइस, फिर सस्ता हो जाएगा। अंबानी आएगा, अदानी तो है, अंबानी कोई नहीं। नहीं वो लोग वो इसमें ये गेम में नहीं है जो अंबानी वाला लगा रहा है मेगावाट्स के ऊपर सेल प्रोडक्शन का एक सारा प्लांट है। वो लोग जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अलग कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात में इतना ये है, इससे इतना गीगावाट प्रोड्यूस करके तो आप वो ये डेटा सेंटर को इसको एनर्जी भेजने के अलग प्लान है। डाटा सेंटर्स को क्लाउड ये वो लोग प्लान जो लगेंगे इसको हाउस होल्ड में टारगेट नहीं है, तो सारा गेम है 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बहुत गेम है। हमारे आफ्टर देखा हम लोग कितना बात कर 50 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बिजनेस करते हैं, तो ये भी 1 मेगावाट का जनरली कॉस्ट होता है अभी 3 से 4 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये है 1 मेगावाट का। वो लोग करते हैं 100 गीगावाट అంటే 1 लाख मेगावाट कितना लाख करोड़ है। हम लोग 1 लाख 2 लाख के 1 करोड़ बात 1 करोड़ ऐसे बात है चल रहे हैं। अभी प्लान और इंस्टॉलेशन का बैकग्राउंड वर्क सब चल रहे हैं। गुजरात में भी नेक्स्ट 5 साल में अभी जो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी 20 to 25% है, फ्यूचर में 50% तक जाएगा नेक्स्ट 10 साल में। उसमें मैक्सिमम शेयर दे देगा ये अदानी और अंबानी। तो सर गुजरात गवर्नमेंट को उनको बहुत सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट तो जो भी प्लान है पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है उनके पास, उससे उनको जनरली बेटर फायदा होता है। अब पर्सनल इंटरेस्ट हो तो जैसे पहले आपको जो डिस्कस करो उसका ऑफलाइन में कैसे सिस्टम में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। एक कस्टमर को कैसे हम लोग सब सजेस्ट करेंगे, कौन सा कितना किलोवाट सजेस्ट करेंगे, कितना किलोवाट का हम लोग को रिकमेंड करना है, अवेयरनेस ऑफ नॉलेज ना। आजकल में बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें आपको डेटा प्रोवाइड करेगा तो कस्टमर को डेटा वो सॉफ्टवेयर बताएंगे कितना बैटरी चाहिए, कितना इन्वर्टर कैपेसिटी चाहिए, कितना वाट तक सोलर लगाना है, ये तीन चीजें हैं। कॉन्क्रीट और हाइब्रिड में आरओआई किस में जल्दी रख सकते हैं? अनग्रिड में कॉन्क्रीट ये तो ज्यादा एफिशिएंट है हाइब्रिड। हाइब्रिड इफिशिएंसी नहीं, कंफर्ट के लिए हाइब्रिड चाहिए। जिसके पास पैसा है, कंफर्ट चाहिए, उसको पावर का बेनिफिट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम लोग को जो रिक्वायरमेंट के साथ लगाना है एंड किसको हम लोग रिकमेंड करते हैं, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी रिमोट में बिल्कुल पावर ही नहीं है, आप हाफ कट दे देते तो वो काफ़ी है, रिकवर नहीं है। अभी सिटी में पावर कट नहीं है, फिर आगे लगा के फायदा क्या है। पावर कट होगा बैकअप के लिए तो ये वाला चाहिए। नीड के हिसाब से हम लोग रिकमेंड करेंगे क्या बेटर है, क्या है। अभी सिटी में पोल्यूशन में यदि मेंटेनेंस का टाइम छोड़ दो और फिर बहुत कम है, समर में भी वो मेंटेनेंस की वजह से कवर कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे बैटरी की मेथड के अंदर शुरू कर रहे हैं उस टाइम के लिए कैसे का घर में मैक्सिमम घर वालों को इन्वर्टर का सपोर्ट है। इसका डाउट सब कैसे करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाता है। जीरो होने को मैक्सिमम कम हो सकता है। जैसे हमको मिनिमम गवर्नमेंट जो भी आपको कनेक्शन देंगे नाम में 200 रुपये ना कुछ कनेक्शन चार्जेस लेते हैं, वो तो पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो भी चार्जेस होगा वो कम होते जाएगा। वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ ओवरऑल नेट कंजम्पशन के साथ कोई ले सकता। आपको 200 यूनिट की जगह 20 यूनिट आपको कंज्यूम कीजिए टोटल वैल्यू है मैंने सुना 20 यूनिट के लिए एक तरह से बेसिक चार्ज 3.5-4 रुपये बेसिक अमाउंट नहीं पे करते हैं। जो मिनिमम नॉमिनल चार्ज है कनेक्शन के लिए वो तो पे करना पड़ेगा। बट ओवरऑल इट इज वेरी यूजफुल। आरओआई आप कैलकुलेट करें तो 5-6 इयर्स का अंदर आपको मिलेगा वो पैकेज गवर्नमेंट सब्सिडी साथ ऐड करेगा। 5 साल भी नहीं लगेगा अभी तो सिस्टम प्रेजेंटली से गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ है। आप 3 ईयर वाला सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो 4-5 साल में आपको पूरा आरओआई आ जाएगा। आपको 16 फीट में होगा तो जैसे आप पति वो बोल रहे हैं 1 रुपये में भी आपको पूरा हो जाएगा। कास्ट टू कास्ट के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सोलर पैनल का एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं है, उसका ऑप्टिमल कंडीशन से भी ज़्यादा इफेक्ट है। 25 डिग्री 100 मीटर पर स्क्वायर मीटर लाइट इंटेंसिटी होगा, उसी से आपको ज़्यादा
सोलर का कुछ फैक्टर है जैसे टेस्ट कंडीशन एसटीसी कंडीशन होता है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन वो कंडीशन में आपको फुल एनर्जी प्रोड्यूस होता है